Now in biology class I am here, and today we will discuss about some important board pattern questions. Okay, so here we are giving you some twist form of the questions from the same chapter, heredity and evolution, because we are studying here heredity and evolution. Okay, so here I am giving you and explain and giving you some tips for answering. That's why you can give answer very easily. So here the question is that how is the equal genetic contribution of male and female parents ensure in the progeny. Okay, this is the question. Okay, so now what have to do here कि किस तरह से जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल पेरेंट्स की हो, तो वो किस तरह से प्रोजेनी में हेल्पफुल होती है, किस तरह से वो प्रोजेनी को मेकअप करती है. तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर, कि हाउ मैनी क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन गैमेट्स. Gametes, you can easily explain that how many number of chromosome present in gametes, कि 46 or 23. तो you have to do here. तो on the basis of number of chromosome, that's why the genetic constitution will determine the number of the progeny. Okay, कि किस तरह से मेल के जो क्रोमोसोम हैं, जो गैमेट्स हैं, जैसे गैमेट्स आर like X and Y in male, while X and X in female, and each of gametes will have 23 number of chromosome, 23 present in gametes of male and 23 present in gametes of female. This is the symbol of male, this is the symbol of female. Okay, so this ensure the fertilization. So you have to write here about the gamete formation, that how does the gamete formation take place. Okay, so you have to explain yourself about this question and have to write the answer. Clear? Now next question, you can see here that what have to do here. Now you can see in this question कि if we cross pure tall dominant plant, pure dwarf recessive plant, and if we now self cross the P plant of F2 progeny. So remember that I have told you and explained about the process of TT. Okay, I am recalling you, and also TT, and in F1 progeny we will find capital T and small t. This is F1 progeny. Students, I am recalling again and again the topics here, because you can make your confidence level and you can increase your confidence. Okay, so to build up your confidence, I am recalling again and again these topics. So here, and you know very well here that what have to do here, कि what do the plants of F2 generation look like. Okay, जो F2 जनरेशन के प्लांट होंगे वो किस तरह के दिखाई देंगे. सो यू कैन एक्सप्लेन हियर कि वो टॉल प्लांट्स हो सकते हैं या रिसेसिव प्लांट्स हो सकते हैं. ओके, तो टॉल होंगे, रिसेसिव होंगे, और दे आर बोथ टाइप्स ऑफ फीचर्स विल हैव इन F2 प्रोजेनी. तो यू कैन एक्सप्लेन हियर कि व्हाट डू द प्लांट और F2 जनरेशन लुक लाइक. ओके, एंड तो स्पेशली यू हैव टू राइट हियर द फीचर्स ऑफ F2 जनरेशन. एंड नाउ इन सेकेंड वन क्वेश्चन कि state the ratio of tall plant to dwarf plant in F2 generation. So you know very well that what is the ratio, 1:2:1 or 3:1. So you have to write or choose that what will be the ratio in progeny. Okay, कि 1:2:1 or 3:1. So you have to write yourself what will be the correct ratio. And now in option C, state the type of the plant not found in F2 generation. So here you have to write that which kind of the plants does not present in F2 generation. You have to write and explain here कि what will be the reason behind and what appeared in F2 generation. किस तरह का रीजन है, किस तरह के प्लांट्स F2 जनरेशन में कौन से फीचर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो यू हैव टू राइट योर सेल्फ कि स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F2 जनरेशन.
किस तरह के प्लांट्स जो होंगे वो F2 जनरेशन में नहीं होंगे, तो यू हैव टू राइट योरसेल्फ। एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट कि बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, यानी कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो F2 जनरेशन में नहीं होंगे। स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F2 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, यानी कि यहाँ पर ये जो F2 है, यहाँ पर यू हैव टू राइट हियर F1। ओके, इन प्लेस ऑफ F2 you will write here like F1। clear? तो state the type of plant not found in F1 but appeared in F2 generation, तो you have to write कि some of feature of plant will have to be expressed in F1 generation, कुछ तरह के प्लांट जो F1 में एक्सप्रेस होते हैं। ओके, तो वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो इस तरह कौन से फीचर होंगे? स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे जो कि F1 में अपीयर्ड नहीं होंगे जबकि F2 में अपीयर हो जाएंगे? तो यू हैव टू राइट योरसेल्फ आई थिंक। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम प्रीवियस वीडियो एंड ऑल्सो आई हैव गिवन द सम ऑफ टिप्स रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन अबाउट द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an individual, you can see here, cannot pass on to its progeny the experience of its lifetime। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज दैट सम ऑफ इंटेलिजेंस वर्क्स, जैसे सपोज दैट साइंटिस्ट ही होते हैं, साइंटिस्ट का ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनके जो जनरेशन है, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके जो चाइल्ड हैं वो भी साइंटिस्ट ही बन जाए, ऐसा ज़रूरी तो होता नहीं है। तो वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? तो ऐसा यहीं पर यही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस को गेन करता है, तो वाई इट डज़ नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे कैरेक्टर्स किस तरह के होंगे कि एक्सपीरियंस जो हम लोग गेन कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में गेन कर रहा है, कोई भी स्टडी कर रहा है, अपने माइंड को डेवलप कर रहा है, तो वो उसका जो फीचर है वो उसकी जनरेशन अगली जनरेशन में नहीं पहुंचेगा। तो क्या ऐसा रीज़न हो सकता है? तो यू हैव टू आंसर हियर, यू हैव टू राइट योरसेल्फ कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो यू हैव स्टडीड ऑलरेडी अबाउट दीज कैरेक्टर्स इन डिटेल, आप इन कैरेक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं ना अच्छे तरह से। तो यू कैन डू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि सम ऑफ कैरेक्टर्स विच individual acquiring during his lifetime, तो those characters what would you give the term for those characters? तो you have studied about like acquired characters and also like inherited traits, okay, and also inherited traits you have studied na, तो you have to mention and you have to write answer yourself. Next question, like this is the question and I am giving you answer also because this is very twisted question कि in human beings who look so different from each other in term of color size, क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं वो कलर में, साइज़ में बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। होता है नहीं होता? एक ही फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स, लेकिन फिर भी क्या होता है वो एक ही स्पीसीज़ के होते हैं। जैसे हम सब लोग हैं, ह्यूमन हैं, लेकिन सभी ह्यूमन दे आर नॉट इन सेम ऑफ कलर, शेप, साइज़। सभी की बॉडी का कलर अलग हो सकता है, सभी की बॉडी का साइज़ अलग होगा, सभी में सारे मतलब शेप, साइज़, कलर सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो व्हाट इज़ द रीज़न? और ऐसा होने पर भी वी ऑल आर द सेम स्पीसीज़, वी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज़। तो उसके लिए क्या रीज़न है कि डीएनए स्टडी, क्रोमोसोम नंबर सभी में सेम होते हैं जितने भी ह्यूमन, क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि द क्रोमोसोम नंबर, ओके, कि क्रोमोसोम नंबर इन ईच इंडिविजुअल आर स्पेसिफिक एंड डीएनए ऑल्सो। तो ये सारे फीचर्स होने के वजह से ही वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ओके, तो यू हैव टू राइट द आंसर एंड ऑल्सो द क्वेश्चन हियर। ओके, still if you have any confusion then you can discuss with me. Thank you.